Assalamu alaikum. Can everybody hear me? Assalamu alaikum. Yes. Salam. Sorry for late. Alaikum. Sorry. कैसे हैं आप लोग? हम जी ठीक है। Sorry for a little bit delay क्योंकि मेरा लैपटॉप एकदम बैटरी उसके बाद इसको अपडेट चाहिए था तो आज हम half hour late हो गए हैं. So the first thing what I'm going to start is 1 minute. Let me enter everybody. सब आ जाए ना. Let everybody join. Mashallah, today we have more participants than yesterday. That's good. अनाया, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मुझे आप सबकी वीडियोस भी ऑन चाहिए इफ यू डोंट माइंड, ताकि मैं आप बच्चों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी देख सकूं. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस ऑफ किड्स. इफ यू डोंट माइंड, if you don't have an issue, please just switch on your videos as well and open your mics also, because I'm going to take oral and written both vocabulary tests at first. Hi teacher. How are you all? Alaikum salam. We have how many? 7 people over here. That's good. Hello Ajwa, how are you? Assalamu alaikum. Fine. I can see only Ajwa. I cannot see anybody else. मुझे कैसे पता लगेगा? Assalamu alaikum Hajra, welcome. Anaya, good to see you. Why I want to see you is कि मुझे पता लगेगा कि आप लोग चीटिंग तो नहीं कर रहे, आप लोग अटेंटिव हो, बुक से तो नहीं देख रहे, स्पेलिंग, बिकॉज ओरल भी मैं ले सकती हूँ. सबको आने दो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ. जो मेरी आवाज आ रही है. Good. So I can see three girls. There are no boys. Usman is there. Welcome Usman. Abdul Rahman is there. Abdullah Haris is there, but I cannot hear them. Assalamu alaikum Abdullah Haris. Alaikum assalam. Nice to see you. Okay. So most of you were here yesterday, and few of you weren't. We are on our science न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस के थोड़ा उल्टा नजर आएगा आपको. तो इसका यूनिट नंबर जी. Can you hear me? Yeah, I can hear all of you. Only I cannot hear Abdul Rahman and Usman Arif. I want to hear them. No. Ashad, Assalamu alaikum Ashad. Good to see you. Walaikum assalam. Okay. I think maximum kids are there. So yesterday, who were not there in yesterday's class? Abdul Rahman was not there. Usman Arif could not be able to join us. And Abdullah Haris, aap the kal? You were there yesterday? No. Yesterday, what we did was we did some vocabulary lesson words for unit number 2 in science. You all got the syllabus, no? For science second term. Yes. Okay. There is a unit with unit number 2, microorganisms, health and disease. Because अब्दुल्ला हारिस और जो बच्चे कल नहीं अटेंड कर पाए थे उनके ऊपर ये vocabulary एग्जाम या क्विज नहीं है. The kids who attended yesterday my class, are you ready for the quiz? Are you ready for the quiz? Yes. Raise hand. Okay, अब मैं आपका क्विज कैसे लूंगी? एक तो ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि हमने चैट कैसे करनी है. You all will go on your screens, chat option. नीचे देखिए अपनी स्क्रीन में चैट ऑप्शन है. When I will ask a word, you will directly write that word. जो पहले लिखेगा मैं उन सब बच्चों को यानी वो करूंगी, यहाँ पर मेंशन करूंगी कि हाँ आपने स्पेलिंग लिखी है. That's good. तो एंड जो बच्चे आज न्यू हैं उनको मैं अभी लेसन रिकॉल भी कर दूंगी. ओके, सो देयर आर ओनली मैक्सिमम 10 वर्ड्स वी आर गोइंग टू डू.
Ready? Yes. If Abdullah Haris and other students who are new, if you know the spellings, that's very good. You can write in the chat box. So let's start. One. Chat box ready आपके आंसर देने के लिए? G. Okay, 1, 2, and 3. The first word is microorganism. Just type fast. Inaya, very good. You are number 1. Ashad, microorganisms, correct. Nobody else? Okay. Okay. We go for spelling number 2. Carbohydrates. Abdullah Haris, good. But Abdullah Haris, there should be no gap, okay? You have written micro separate and organism separate. The spelling is correct. Hajra, very good. Abdullah Haris, very good. Carbohydrates, very good. The other word is deficiency. Good job, kids. Good job. Deficiency. Inaya, very good. Good job. This is show. Ashad, it's not definitely, it's deficiency. So you got a mistake, Ashad. Hajra, carbohydrate, very good. Deficiency. Okay, now I want oral. Who is ready for oral? Raise your hand. Oral. The word is pneumonia. Who is going to read for me? Spell it. Pneumonia. What, teacher? Pneumonia. Can you spell it? Pneumonia. Yeah, can anybody spell it? Spelling. Yeah, spelling Usman. Can you spell pneumonia? Can anybody spell pneumonia? Miss me. No. L-E. No. Pneumonia doesn't start from N. Pneumonia. Yeah. Good. It was in the list. Pneumonia. Yeah, anybody is cheating? Are you sure you're not cheating? Okay. Pneumonia is there. P is silent in pneumonia. P N becomes N sound. Okay. ये वैसे इंग्लिश की क्लास में भी सिखाएंगे हम आपको कि साइलेंट वर्ड्स क्या होते हैं, बट यहाँ पर P साइलेंट है. It's P N-E-U-M-O-N-I-A, pneumonia. Okay. So the other word is antibiotics. Who can pronounce? Who can tell me antibiotics? Fast. All of you together can do, no problem. Antibiotics. Antibiotic. Very good. Good job, kids. You are trying very well. And this competition is like, I'm so happy you are. Okay, the other word is sterilized. What? Sterilized. Sterilized. Try. S-T-R-I-Z-L-E. No, one letter is missing. Try again. Sterilized. Break it into 3 pieces. Sterilized. S-T-I-R-L-I-E-S. You have to, no, still mistake. Not stir. Stir. S-T-E-R-I-L-I-S-I-N-G. Near. Okay. Okay. Now I will ask all. Okay. Now I will ask the meanings of some words. Okay. If you remember yesterday, I have given you all the meanings of these words. What is unicellular mean? What does unicellular mean?
Those who attended my yesterday class should remember what was unicellular. Which have more than one cell. That is, uni means one. So one cell. Any organism or any body made of one cell is unicellular. Okay, what is yeast? Y-E-A-S-T. Yeast. Y-E-A-S-T. Abdullah Haris, no problem because you were not in yesterday class. Don't Yes, worry. I know. Anybody remember yeast? Yes, I was also not. No problem, beta. Who was not there yesterday? Don't worry. The अम्मी से पूछिए जी खमीर उर्दू में उसको खमीर कहते हैं. So I thought you are asking from your mama. Okay, yeast means a kind of powder, a kind of chemical, a kind of bacteria which makes bread, anything, any needed flour raised, यानी जो bread बनाने के लिए है. Okay, उसको yeast कहते हैं. Okay, what is microscope? Very easy. I think this all of you will know very well. What is microscope? Ajwa, will you please answer me? You're very quiet. Which we can see from. With the help of microscope. What kind of things you are able to see with microscope? Microorganism. We can see. Microorganisms we can see Very from good. microscope. This is the important part of our lesson, microorganism. Okay. This is the main part of our lesson. Okay. Can anybody tell me three types of disease caused because of virus? Any virus? कोई भी disease हमने कल पढ़े हैं जो lesson में है जो. PHPOID. No, उसका नाम बताए ना. Tell me the name. Bacteria. No. I mean वो Typhoid. टाइफॉइड. ओके. और क्या होता है आपको अगर आप बीमार हो तो? निमोनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डायरिया हो जाता है. ओके. सो मलेरिया भी हो जाता है. why malaria comes to us? Like क्यों होता है हमें मलेरिया? Can you just anybody tell me? किस चीज के काटने से मलेरिया होता है? Do you remember अनाया, अजवा? Mosquito. कौन सी मॉस्किटो? मॉस्किटो में मेल और फीमेल होते हैं, तो किस मॉस्किटो के काटने से? फीमेल. This is very important part. You should always remember कि फीमेल मॉस्किटो के काटने से हमें वर्स्ट किस्म का मलेरिया हो सकता है. Okay, so I will wrap up the vocabulary session. I was happy that you all participated in this. So now what I will do, I will start the lesson. हम इसे read भी करेंगे, हम इसे discuss भी करेंगे, हम इसको understand भी करेंगे. Okay? तो हमारा जो lesson अभी आप screen share कर रही हूँ आप लोगों के साथ. Just the same screen. Tell me if you are seeing it. Okay. So we have already done the part of vocabulary is gone now. This is our unit. Okay. मैं आपको ओवरऑल इसकी जो एक्सप्लेनेशन है कल कर चुकी हूँ. अब हम सिर्फ इसका स्पेशल और इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे. Are you ready? Yes. All your books are open and your rough copies or note copies are open, so you can write some important points which I will explain you. Okay, I will fastly do and only ask few questions with you. So let's start. Recalling we don't need because already yesterday we have recall, and what we will learn is the first important thing is to know about 1 minute. To know about is just 1 minute please. Is a balanced diet. Okay, this is very important part of your lesson. What is balanced diet? Can anybody just let me know what is balanced diet? किसी को कुछ मालूम है इस बारे में? नहीं? A balanced diet can keep you healthy. Very good. ये हमें हेल्दी भी रखती है, लेकिन इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बैलेंस्ड होनी चाहिए? What are they? If you remember food pyramid. Yes, I remember.
Yes, I also do. वेरी गुड. जब आपको कोई चीज याद रहती है दैट मीन्स इट विल हेल्प यू कनेक्ट द न्यू लेसन. तो बैलेंस डाइट जो होती है उसके मुताबिक आवर बॉडी नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, सर्टेन अमाउंट ऑफ विटामिन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और भी जितनी चीजें आती हैं आप इसमें देखें, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये सब हमें बहुत ही बैलेंस तरीके से लेनी चाहिए. वी शुड नॉट ईट इट, इतना ओवर नहीं खाना चाहिए. पानी का इस्तेमाल 8 glasses आर मस्ट इन एवरी डे. 8 glasses you should. It's better if you count and do them. Otherwise 8 is necessary to keep your skin, your body, your bones, everything healthy. Okay, there are ways to preserve food to keep it free of germs. Yesterday also we discussed about this. What are those ways, if you remember? Any of them? याद नहीं है? हमने कहा था कि जो प्रिजर्वेशन होती है वो जो टिन्स होती हैं, कैंड होती हैं, सॉल्टेड करके हम उन्हें ड्राई करके हम उन्हें फ्रीज करके हम चीजों को, अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग कि हम अपने फूड को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करते हैं. इवन द मिल्क कमिंग इन द पैक आर प्रिजर्व. उनको टेट्रा पैक में प्रिजर्व किया जाता है. व्हेन यू ओपन द टेट्रा पैक, usually they are silver from inside or they are even white also, so it keeps the outer germs free. वो आपके मिल्क में या आपके फूड में या जैम जार में या पिकल्स में नहीं जाता. Okay, the other, some diseases are caused by microorganisms. We have already discussed it. Microorganisms are small bacteria which we cannot see them, और virus भी हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते. ये हमें outer world से attack करते हैं through our breathing. We breathe in or we breathe out. There are so many viruses and bacteria which affect our body. Some microorganisms are useful. Obviously मैंने आपको बताया जैसे बैक्टीरिया हैं, ये यूजफुल है, ये हमें योगर्ट बनाने में और चीज बनाने में हेल्प करते हैं. So all these things we have discussed yesterday. Now we'll go for the next part, that is, now see, you can see the pointer. I am on this paragraph. Okay. Yes. All food contains substances which the body requires. I will only stop where needed. Okay. Otherwise you just keep on reading from your textbook. All food contains substances which the body requires. Some foods are better than others because they have a higher food value. Like water is a kind of basic necessity, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा पिएं तो ये आपके लिए अच्छा है. और इसके अलावा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर खा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट यूज कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू आपकी बॉडी को हार्म कर लेगी. Did you know that the food can also be bad for you? Obviously, more chocolates, more salty items, more fried, deep fried, और आप जिसे फास्ट फूड कहते हैं, इनकी क्वांटिटी आप ज्यादा खाएंगे, बल्कि इनकी तो क्वांटिटी अवॉइड ही करनी चाहिए. बट इफ यू ईट मोर ऑफ देम, they are harmful for your health. Eating too little of some food can also be bad for you. जैसे कि आप लोग इस एज में दूध नहीं पीते, आप लोग पानी नहीं पीते, आप लोग फ्रूट्स नहीं खाते. The kids who are malnourished, कमजोर हो जाते हैं, उनकी eyesight weak होती है. They are not using a good amount of fruits and vegetables. Like आपको ज्यादा से ज्यादा आइस को अच्छा कंट्रोल यानी सही रखने के लिए कैरेट्स का जूस और कैरेट्स खाने चाहिए. वैसे तो रॉ खाने चाहिए, बट यू कैन ऑल्सो यूज देयर जूसेस एज वेल. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फूड. यू कैन सी द चार्ट डाउन. अब इसका आप चार्ट देखें, ये जिसपे बल्ब लगा हुआ है. कैन यू जस्ट फास्टली टेल मी दिस वर्ड जो जंबल हुआ EINOPRT, what word is this? Miss protein. Protein. Please write on your textbook. उसी जगह पे यहाँ नीचे लिख लें इसको, protein, and spell also protein. PROTIEN. Very good. And what is this? AABCDEHORRTY. What? Carbohydrate. Carbohydrate. Very good. Just write down. And what is this, the third one? Vitamin. Very good.
Very good, very good. Vitamin. Vitamin. Okay. So protein, if we are eating fish, if we are eating red meat, if we are taking eggs in a good and balanced amount, they provide our body protein. And proteins are vital for our body to maintain a healthy body. Okay. Carbohydrates हमें energy देते हैं. Like अगर आप गंदम का आटा खाएं, जिसे whole wheat flour घर की रोटी होती है, जैसे ये खाएं, आप potatoes खाएं, आप कोशिश करें कि फ्राई पोटैटोज ना खाएं, बेक खाएं या स्टीम खाएं. ओके, इट्स वेरी इजी टू स्टीम एंड बेक देम. सो इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, जो आप फ्रेंच फ्राइज बहुत खाते हैं, उसमें पोटैटो की सारी ताकत खत्म हो जाती है. हम तो बहुत यमी करके खाते हैं, बट एक्चुअली उनकी हेल्थ बेनिफिट खत्म हो चुका होता है. ब्रेड ऑब्वियसली विद इन जो फ्रेश ब्रेड है वो हमारे लिए बहुत अच्छी है. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट बैक्टीरिया और व्हाट agent is used in making bread? ब्रेड किस चीज से बनती है? अभी हमने डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले. Grain, wheat. ग्रेन एंड व्हीट. अच्छा, ये तो इंग्रेडिएंट्स हो गए, लेकिन इसके अंदर एक और चीज भी डालते हैं जिसको Yeast. Yes. Who answered? Sorry, I could not see. Who answered? Ashaz. Ashaz. Good job, Ashaz. That was very good of you to remember this. तो ब्रेड बगैर यीस्ट के या बगैर ग्रेन और एग्स के भी नहीं बनती. वेरी गुड अब्दुल हारिस, यू आल्सो गिव अ वेरी वैलिड आंसर. ओके, विटामिन. विटामिन आपको मिलते हैं फ्रूट से, मिल्क, पानी से. वैसे मिल्क में कैल्शियम होता है. यहाँ भी आई डोंट थिंक दिस इज मिल्क, दिस कैन बी वाटर आई थिंक. जूसेस वगैरह से, ग्रीन लीफी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पिनच, सैलड, कैप्सिकम, क्यूकम्बर, इनमें बहुत बड़ी तादाद में वाटर होता है, पानी होता है, जो आपके बॉडी को विटामिन प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है. ग्रीन लीव्स अगर आप ऐसे कच्चे भी खाएं सैलेड की तरह, तो दे आर वेरी हेल्दी. So protein, they build you up without making you fat. Okay, हम स्मार्ट रहते हैं. तो आपकी एज में तो ये आपको अच्छी खासी जो है ताकत देंगे, लेकिन जब आप मेरी एज में आओगे तो ज्यादा प्रोटीन खाने से मैं बहुत मोटे हो सकते हैं हम लोग. तो बस बैलेंस होना चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें फाइबर्स होते हैं एंड लिटिल प्रोटीन भी होता है. दे गिव यू एनर्जी. जब आप एक्सरसाइज करने वाले बच्चे हो, इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड इन द फील्ड, आप स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलते हैं, सो यू शुड ऑलवेज हैव हेल्दी अमाउंट ऑफ. साइकिल हर रोज चलाता हूँ. साइकिल चलाते हैं तो योगर्ट जरूर खाया करें, और पोटैटो बेक या स्टीम खाया करें. ब्रेड, आप सिर्फ ये वाली ब्रेड नहीं, स्लाइस ब्रेड नहीं, यू कैन हैव अनदर काइंड ऑफ ब्रेड जो आपको फ्लेवर्ड भी थोड़ी हो तो कोई बात नहीं. तो ये आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं. जो चीज आप फ्रेश खाएंगे वो आपको ज्यादा ताकत देगी, इंस्टेड ऑफ जो स्टोर में आपको बहुत लॉन्ग टर्म यानी पड़ी रहती है और आप वहां से लेकर आते हैं. ओके, द मिनरल्स जो हैं ये आपको, इनमें फाइबर भी होते हैं. दे हेल्प यू कीप हेल्दी. ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपको हेल्दी रखती हैं. ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पेज. जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, दैट इज माइक्रो Microorganisms. वेरी गुड. 1 minute. हाँ, microorganisms, although you cannot even count them. If you see around you, there are billions of microorganisms, and if you are a freak means आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं और आपको शौक है इन सबको देखने के लिए, either you go to the test जो लेबोरेटरीज हैं या आपके स्कूल में साइंस लैब है, वहां पर हो सकता है आपके पास एक अच्छी पावरफुल ये माइक्रोस्कोप हो वहां पर. सो यू कैन जस्ट वॉच देम अंडर स्पेसिफिक लाइट कि ये कैसे लगते हैं. अभी मैं सोच रही हूँ कि आई शुड शेयर विद यू सम ऑफ देम, बट लेट अस फिनिश दिस, क्योंकि इस लेसन का एक पार्ट और भी आएगा जब हम इसकी एक्सरसाइज वो वर्कशीट्स करनी है. जब स्कूल से हमें वर्कशीट्स मिलेंगी हम फिर बैठेंगे इस लेसन के लिए. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग थिंग्स जो कि बहुत छोटी हैं. हमने कल एक्सप्लेन किया था. The branch of science that deals with the study of microorganisms is called microbiology. Yes, Ashaz, you want to say anything? आपने hand raise किया? मेरे पास अभी रफ कॉपी नहीं है तो मैं वो नोट्स पे कर रहा हूँ.
ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड, बट नेक्स्ट टाइम आप जरूर अपनी एक कॉपी मेंटेन कर लेना जैसे आपने स्कूल के लिए करनी होती है. Okay, so what is this microbiology? Biology means to study about life. Life कोई भी जिंदा चीज है उसके बारे में जो अब आप स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं. और माइक्रो का मतलब है किसी छोटी चीज के बारे में जो जिंदा है उसके बारे में आपने स्टडी करनी है. ओके, और जो इसको स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये 3 वर्ड्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. I want you to write these 3 words in 3 lines and then define them. Which one? Miss, which one? Microorganisms, इसको आप एक साइड पे लिखें, फिर लाइन लगाएं, उसकी डेफिनेशन की जगह होनी चाहिए. माइक्रोबायोलॉजी, इसको नंबर 2 पे लिखें, एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ये सारा का सारा आंसर, इसकी डेफिनेशन आपको इसी में मिल रही है इस पैराग्राफ में. ये आपका टास्क है, आपने कंप्लीट करना है. मे बी इन अनदर सेशन आई विल आस्क यू. Miss. Okay, Miss. ओके, अब हमने ये सारा पढ़ लिया है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ, अच्छा ये हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड फाउंड. वी कैन फाइंड देम इन एयर. कैन यू सी द स्पॉट? नो, आई एम, ये जो स्पॉटलाइट है Yes, आपको Miss, नजर I can see. Yes. in the air, in water, in soil. What is soil? Do you all remember what is soil? Yes. Good job. बताने की जरूरत तो नहीं है, मट्टी. ओके, सिंपल. एंड सॉइल, इन Yes, Miss. ओन बॉडी, हमारी बॉडी में इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि वी आर जस्ट नॉट, वी कैन नॉट इमेजिन हाउ मेनी. एंड ऑन द सरफेस ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट, इवन ऑन योर हैंड, इवन ऑन योर स्किन, देयर आर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैं आपको एक बड़ा फैक्ट बताने वाली हूँ कि whenever in the night we are sleeping, there are small microorganisms who live under our eyelashes. और ये हमारी स्किन पर पूरी रात घूमते हैं, but we cannot even feel them. If you are getting interested, मैं आपको ये टास्क दूंगी, आप गूगल पे सर्च करें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी आई पर रहते हैं वो कैसे दिखते हैं. आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा और मुझे जरूर इसकी स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में भेजिएगा कि आपने क्या स्टडी किया. ओके, डन. Okay. सॉरी, मुझे लगता है कि कोई चीज ऐसे ऊपर ऊपर से जा रही है हमारे. अभी फील हो रहा है? नहीं, अभी फील नहीं होगा आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है. सो यू आर, तो होता है, हाँ चलें, अभी नहीं होगा. but they are so small you cannot feel them. But now because I have bring this thing to your attention, अब आपको curiosity रहेगी कि रात को आप चेक कर रहे होंगे कि आपकी आंखों में कौन से germs हैं, but we cannot see them. So please search, गूगल पे सर्च करके मुझे इसकी आप थोड़ी बहुत कोई नाम वाम डेफिनेशन शेयर. Miss, Google पे क्या लिखना है? देखिए, अब Miss, Google पे क्या लिखना है? अब मैंने आपको आइडिया दिया. आई वांट यू टू ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ. ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस कि अपने दिमाग पे जोर डालें, क्वेश्चंस डेवलप करें खुद और फिर आप उनको सर्च करें. मैंने आपको एक बता दिया ना कि देयर आर सम वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया व्हिच लिव ऑन योर आईलैशेस. बस आप इतना भी लिखेंगे, इससे मिलता जुलता भी कुछ लिखेंगे तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, बट यूज गूगल इन द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, अपने पेरेंट्स या मामा के साथ बैठ के यूज कीजिएगा. Okay, the next part of the question is, ये सारा हो गया है. In everyday life, people use the word germs when they talk about harmful microorganisms. आप देखेंगे आपकी मम्मा आपको डेली कहती हैं, बेटा इस चीज को हाथ नहीं लगाओ, जर्म्स लग जाएंगे. बेटा इस चीज को हाथ धो लो, जर्म्स लगे होंगे. ऑब्वियसली जर्म्स आर द वाइटल रोल जो प्ले करते हैं किसी भी डिजीज को हमारी बॉडी के ऊपर और अंदर पहुंचाने में. ओके, so this part of the lesson, some living things are made up of only one cell, हम डिस्कस कर चुके हैं. they are called unicellular, और ये भी आप माइक्रोस्कोप पे देख सकते हैं. मल्टीसेलुलर भी माइक्रोस्कोप पे आप जाके देख सकते हैं. we and animals and birds, they are all made of multicellular. cells आपको पता है क्या होते हैं? do you remember what cells are? Anybody remember? ये हमेशा पहला लेसन होता है साइंस का जब से हम साइंस पढ़ते हैं. सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू. अच्छा, हमारा टाइम जो है वो 10 मिनट का रह गया है, मुझे हर हाल में फिनिश करना है. ओके,
Okay, so the other thing is kinds of microorganisms, viruses and protozoa. ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियाज हैं, और फंजाइड भी जो है ये भी एक किस्म का बैक्टीरिया ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सॉरी। और ये जो वायरसेस, आई विल बी फास्ट, ओके, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वायरसेस कैन ग्रो एंड सर्वाइव ओनली व्हेन दे आर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम जिंदा हैं तो हमारे अंदर ये वायरस अटैक करेगा। इफ द बॉडी इज डेड, इफ दिस इज बुक, की सरफेस पर वायरस और वो सब रहेंगे, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हमारे पास Okay, miss. वायरसेस है, हमें एक दिन बुखार थोड़ा होता है, दूसरे दिन बुखार तेज हो जाता है, पहले दिन खांसी थोड़ी होती है, दूसरे दिन खांसी तेज हो जाती है, तो इट ग्रोज, दैट मीन्स द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया व्हिच आर इन आवर बॉडी, दे आर ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग फास्टर। और इस तरह ये ऑर्गेनिजम्स मिलके यूजुअली वार्म यानी गर्म जगह पर और ठंडी और गीली जगह पर ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप कभी बीचेस पर जाएं, स्विमिंग पूल्स पर जाएं, टॉयलेट्स में जाएं, तो आप थॉरली पहले उस जगह को वॉश करें और फिर आप उस जगह को यूज करें, एंड आफ्टर यूजिंग ऑल्सो क्लीन देम प्रॉपरली, डिसइंफेक्ट कर दिया करें, ताकि वहां पर वायरसेस और जो जर्म्स हैं वो किल हो जाएं। द यूज ऑफ डेटॉल इज हेल्पफुल इन दिस, ओके। चलो अब, और ये जो आजकल क्या कहते हैं इसको, कोरोना आया हुआ, ये भी बहुत बड़ा वायरस है, आपने नाम तो बहुत अच्छे से सुना ही है इसका। द अदर थिंग इज सी हाउ द किड्स गेट सिक, तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं, इन्फ्लुएंजा, 1 मिनट, इन्फ्लुएंजा, ये रही सारी बीमारियों के नाम, 1 मिनट। Some illness caused by virus in humans are influenza, चिकन पॉक्स, कोल्ड, मीजल्स, मम्स एंड हेपेटाइटिस। आप जब सब छोटे थे तो आप सबको छोटे छोटे दाने निकले हैं, जैसे आप इस बच्चे के मुंह पर देख रहे हैं, इसको मीजल्स यानी कि उर्दू में इसके बहुत डिफरेंट नाम है, तो चिकन पॉक्स भी है, और आई डोंट रिमेम्बर द उर्दू नेम, भूल गया। बहरहाल चिकन पॉक्स सबको ही बचपन में निकलता है। मीजल्स भी चिकन पॉक्स की तरह होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा जो है वाटर और पस होती है, और ये एक जगह से अगर डैमेज हो जाए तो स्किन पर दूसरी जगह से भी होता है, और ये इनर एंड आउटर होता है। हेपेटाइटिस इज वेरी डेंजरस, ये भी एक किस्म की आपकी बॉडी को अटैक करके आपको वीक करते हैं, आपका कलर खराब करते हैं, येलो हो जाता है, आपकी आईज येलो हो जाती हैं। कोल्ड, आपको बुखार और बहुत शदीद किस्म का जो है ठंड लगती है इसमें। तो ये सारा, और ये प्लांट है, ये बहुत इन्फेक्शियस है। मिसलेस क्या होता है? सॉरी, मिसलेस मीजल्स, मीजल्स जो है ये तो चेचक कहते हैं, आई थिंक। ये एक छोटे छोटे दाने आपकी पूरी बॉडी पर होते हैं, इसमें ये वाटरी होते हैं, हट जाते हैं, यानी दाने और स्पॉट्स रहते हैं। किसी के पानी बीच में भरता है, किसी का पानी नहीं भरता, इट डिपेंड्स ऑन योर मे बी फैमिली हिस्ट्री। तो मीजल्स भी बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह ही होते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें टेम्परेचर होता है। और ये वो डिजीज हैं जो अक्सर एक बच्चे से दूसरे बच्चे को भी लग जाती हैं, इसलिए जिस घर में बच्चों को कभी मीजल्स और चिकन पॉक्स वगैरह होता है, उनको कवर रखते हैं, घर पे रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज बैक्टीरिया। ऑब्वियसली बैक्टीरिया भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हेल्पफुल भी है, ओके। ये यानी कि हार्मफुल नहीं है, ये हेल्पफुल है। योगर्ट, यस, ये योगर्ट बना सकते हैं हम, इससे चीज भी बना सकते हैं, और इवन आप योगर्ट वगैरह में फ्लेवर भी डालते हैं तो भी ये हमारे लिए टेस्टी होता है। दे कैन कॉज इलनेस लाइक टाइफॉइड, ओके। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि हमें, टाइफॉइड एक किस्म का बुखार है, मेनिनजाइटिस भी एक किस्म की इंटरनल आपकी बॉडी की बीमारी है, आपको वीक करती है, और निमोनिया भी, टेम्परेचर, ये सारे बुखार और कोल्ड से रिलेटेड किस्म के जो है डिजीज है, इलनेस है, ये हार्मफुल है, इनकी ये बैक्टीरिया की वजह से है। जो ये बैक्टीरिया, इनका स्पेशल एक बैक्टीरिया होता है, इनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं। नाउ यू कैन सी हाउ दे लुक, ये बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं। अब हम फंजाई की बात करते हैं। Okay kids, if the class will close, I will send you another link to complete the exercise also. आज हमने इसकी एक्सरसाइज भी खत्म करनी है। Okay, मिस फिर कब होगी क्लास? कब होगी? आप साइंस का यूनिट नंबर 2 आज हम खत्म कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट क्लास आएगी जब आपके स्कूल वाले इसकी वर्कशीट भेजेंगे। ओके, देन वी विल सिट टुगेदर एंड सॉल्व द वर्कशीट। ओके, ओके मिस। जो है या तो प्रिंट करके बैठेंगे, अगर प्रिंट नहीं की तो लिख कर बैठेंगे अपनी कॉपीज में, तो फिर हम उसे लाइव बैठ के इसी जूम क्लास में सॉल्व करेंगे। सम फंजाई, नाउ
फंजाई जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। मोस्टली हमें जहन में फंजाई का मतलब ग्रीन कलर ही है। इसको उर्दू में फफूंदी या फूंदी टाइप भी कुछ कहते हैं। तो ये फैलती है, यानी इट ग्रो स्प्राउट, ये स्प्राउट होती है थ्रू द सॉइल या लकड़ी के ऊपर भी हो जाती है। डैम्प एरियाज में, वेट एरियाज में, यूजुअली दीवार टूटी हुई हो तो वहां से भी ये बाहर निकल आती है। एल्जे और फंजाई जैसी चीजें हैं। एंड दिस इज मल्टी सेल्यूलर, यानी ये एक सेल वाली नहीं है जानदार, जिसमें बहुत सेल्स हैं। द फंजाई इंक्लूड्स अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज एज मशरूम्स, yeast and mold। अब मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, आज भी थोड़ा सा ये इस तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली और आंसर्स और क्वेश्चन आ रहे हो। तो फंजाई मशरूम, आप लोग मशरूम सब खाते हैं, किस चीज पर मशरूम होते हैं? कैन यू टेल मी? वुड। किसमें होते हैं? नहीं नहीं, खाने में कहाँ कहाँ होते हैं? सूप। में सूप में भी मशरूम हो जाते हैं, हाँ डाल सकते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पे होते हैं मशरूम, पिज्जाज पर होते हैं, पास्ता में होते हैं। हाउ कैन यू फॉरगेट इट? आप खाते भी हैं, यू फॉरगॉट हाउ। कहाँ कहाँ हमारे पास मशरूम्स होते हैं। फिर मैं तो नहीं खाती मशरूम्स। ओके सॉरी बेटा, आई डोंट नो अबाउट दैट। ओके नो प्रॉब्लम। तो मशरूम्स एक किस्म के अम्ब्रेला की तरह होते हैं, यू कैन सी देम। ये इनका जो फैमिली नेम है दैट इज फंजाई, और ये फंजाई के अंदर इनकी क्लासेस हैं जो मशरूम्स हैं, यीस्ट। तो मशरूम तो हम खा भी सकते हैं और हार्मफुल पॉइजनस भी होते हैं। हर मशरूम जो कहीं भी उग गया आपने उतार के खाना नहीं है, ओके? इट्स लाइक नॉट। और जो ज्यादा पॉइजन भी होते हैं। सॉरी आई कैन नॉट हियर यू बेटा, व्हाट आर यू सेइंग? फिर कोई मशरूम जैसा खा लेते हैं तो उसमें कोई पॉइजन भी होते हैं। जी जी बेटा, मशरूम्स जो हर जगह आपको मिल जाते हैं वो सारे के सारे हेल्दी नहीं होते। स्पेशली फार्म किए गए मशरूम्स ही हेल्दी होते हैं, जो हमारे पास पहुंचते हैं यहाँ पर, वो होते हैं हेल्दी होते हैं, वो खाने के काबिल होते हैं। जो हम लोगों के पिज्जाज के ऊपर लगे होते हैं, हम लोगों के पास्तास में होते हैं, सॉसेस में होते हैं, तो सूप में होते हैं। तो पिज्जा एडिबल है, यानी आप उन्हें खा सकते हैं, बाकी पॉइजनस होते हैं। बार दफा टॉयलेट्स में अगर आपने वुडन बेंचेस रखती हैं, काफी लॉन्ग टर्म वो गीली हैं, मुसलसल गीली हैं, उनके ऊपर भी छोटे छोटे जो ये क्या कहते हैं आते हैं, बट दे आर इन द फ्लावर शेप। उनको तोड़ के वो अलाइव होते हैं। समटाइम यू सी द मूविंग। आई इफ यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ब्लॉक को अपने वेट एरिया में रखें, मुसलसल पड़ा रहे वहां पर कई मंथ्स पड़ा, then you will see some kind of small mushrooms growing from the wood lines। wood की lines में से वो grow होगा, वो healthy नहीं होता, उसको खाते नहीं है, that is poisonous, okay? क्योंकि वो निहायत ही गंदे फंजाई से बना हुआ होता है, germs होते हैं। okay, the other thing is yeast। obviously yeast एक ऐसा एजेंट बन जाता है इसका फंजाई का, जो आपकी अगर प्रिजर्व्ड है तो आपको बेकरी आइटम्स में यूज करते हैं बेक करने के लिए, और अगर प्रिजर्व नहीं है, लाइव है, ओरिजिनल है, तो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खराब कर देता है। या जिनमें यीस्ट होती है, लाइक ब्रेड, आपके जो भी बेकरी आइटम्स हैं, अगर वो गीले हो जाएं और कुछ अरसे तक बंद पड़े रहें, तो उनके ऊपर ब्लैक कलर या ग्रीन कलर का कुछ शो होने लग जाता है, और स्मेल भी हो जाती है। समटाइम योर पेपर्स, योर बुक्स विच आर लेफ्ट wet in a dry and cool place, वो भी कुछ अरसे बाद इसका शिकार हो जाते हैं। इनको मोल्ड भी लग जाता है, आप यूं कहते हैं कि इन्हें कुछ भी ऐसा हो जाता है कि वो फटने लग जाते हैं। ओके, ये भी एक किस्म का फंजाई है जो आपकी बुक्स और पेपर को खा जाता है। यस बेटा, एनी क्वेश्चन? नो? अच्छा, मोल्ड भी ऐसा ही है जो आपकी ब्रेड वगैरह को लग जाता है, वेजिटेबल्स को लग जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ग्रीनिश एंड ब्लैकिश काइंड ऑफ लेयर आ जाती है, और वो फूड को अब फ्रेश नहीं रहने देती, फूड खाने के काबिल नहीं होता। यू कैन सी दिस इज मोल्ड। ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं। अक्सर अगर आप 2 दिन बाद ब्रेड उठाएं अपने किचन में तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है।